Good morning, students. Now, let's continue our chapter number 4, Parts and Whole. This is part 3 video. Now, let's study rupees and paise. So, how many 50 paise will make 1 rupee? So, you are knowing 50 plus 50 is equals to 100. 100 paise means 1 rupee. Clear? So, how would you write it? Yes, 250 paise coin make 1 rupee coin. Like this, you have to write the answer. Next, is 50 paise half of 1 rupee? Yes. So, yes, 50 paise is half of 1 rupee. Clear? Now next, 25 paise is dash part of 1 rupee. So, 25 paise is 1/4 part of 1 rupee because we know that 425 paise coin makes 1 rupee. So, 425 paise. So, we can write it as like this 1/4 part of 1 rupee coin. Clear? Now next, 20 paise is dash part of 1 rupee. So, 20 paise is 1/5 part of 1 rupee because we know that 20 into 5 is 1 rupee. Therefore, we can write it as 1/5 part of 1 rupee. Clear? Next, how many 10 paise will make 1 rupee? So, 10 paise is 1/10 part of 1 rupee because we know that 10 tens are 100. So, therefore, we can say 10 paise is 1/10 part of 1 rupee. Clear with this? You can see over here again I have written it down in which manner you have to write it down in your school notebook. You can write 20 paise is dash part of 1 rupee. So answer is you can write either as 20 paise is 1/5 part of 1 rupee or you can write 520 paise coin make 1 rupee. This is for information. Write this like this 1/5 part of 1 rupee. कैसे लिखना है आपको? 20 पैसे 1 रुपए का कितना भाग हुआ? तो it is 1/5 part of 1 rupee. How many 10 paise will make 1 rupee? इसका आंसर 10 paise coin make 1 rupee है ना? 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तभी 1 रुपया बनेगा. तो फिर 10 पैसे कितना भाग हुआ 1 रुपए का? तो हम उसे कैसे लिखेंगे? 1/10th part of 1 rupee. समझ में आया कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है. So 10 पैसे is 1/10th part of 1 rupee. Clear? Next, Arun's timetable. You can see there are number of boxes given over here. Count the boxes. There are 24 boxes. You can see, count it by yourself. Now, sleeping time is given as 1/3 of a day. So, in a day, how many hours are there? 24 hours. Clear? So, here you can see there are 24 boxes given. Use different colors to show. So, for playing, it is given 1/8
of a day. Studying, it is 1/4 of a day. How many hours does Arun take for sleeping, studying, playing? So you have to find out the time used by Arun for sleeping, studying, playing, and also what part of the day does he use for the other activities. तो अरुण सोने में, पढ़ने में, खेलने में और बाकी कामों में कितना टाइम लगाता है पूरे दिन में, वो आपको पता करना है। ठीक है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। तो 24 बॉक्स दिया गया है, यानी कि एक बॉक्स 1 आवर बताता है। ठीक है, तो स्लीपिंग कितना बताया? 1/3 ऑफ अ डे, यानी कि 1/3 ऑफ अ डे मतलब काउंट करो, इसमें स्लीपिंग का बॉक्स का कलर क्या दिया है? पिंक, तो वो ऑलरेडी दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पूरे दिन में 24 आवर्स में 8 आवर्स अरुण सोने में इस्तेमाल करता है, यानी कि 1/3 ऑफ अ डे मतलब 8 आवर्स he is using to sleep in a day. Now let us count for playing, studying and the time utilized by Arun for other activities. So, we know that 24 hours in a day and above figure contains 24 boxes, है ना? 24 hours होते हैं एक दिन में और आपके पास भी 24 बॉक्स दिए गए हैं। Arun spent 1/8 of a day for playing. खेलने के लिए वो कितना टाइम इस्तेमाल कर रहा है? 1/8 of a day, दिन का 1/8 पोर्शन इस्तेमाल कर रहा है। तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 24। क्यों 24? क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और उसका 1/8 पोर्शन हम प्लेइंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप कैलकुलेट करोगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 1 24 डिवाइड बाय 8, 8 3 क्या आता है? 24। तो कट करोगे तो आपको 3 आएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आवर्स बचेगा। ठीक है, 3 आवर्स मीन्स 3 बॉक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये वाला कलर लिया है प्लेइंग के लिए। ठीक है, तो 3 बॉक्स मैंने कलर कर दिए, 1 2 3। 3 बॉक्स मतलब 3 आवर्स, 3 आवर्स मतलब प्लेइंग के लिए अरुण 3 आवर्स इस्तेमाल करता है पूरे दिन में। Now next, he spent 1/4 of a day for studying. ठीक है, दिन का 1/4 भाग वो पढ़ने में इस्तेमाल करता है, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय 24। क्यों 24? क्योंकि दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। तो 4 6 आप जानते हो क्या है? 24। तो कट करोगे या डिवाइड करोगे तो आएगा आपको आंसर 1 into 6। 1 into 6 कितना आया? 6 आवर्स। 6 आवर्स मीन्स 6 बॉक्स कलर करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टडीइंग के लिए 6 बॉक्स कलर किया है, रेड कलर। 1 2 3 4 5 6। 6 बॉक्स मतलब 6 आवर्स अरुण किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है? स्टडीइंग के लिए। समझ में आया? नाउ अदर एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज के लिए देखो अभी बाकी कितने बॉक्स बचे हैं जिसे हमने कलर नहीं किया है। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बॉक्स अभी भी कलर करना बाकी है, मतलब 7 बॉक्स मतलब 7 आवर्स वो अदर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कौन? अरुण।
क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मेनी आवर्स डज अरुण टेक फॉर स्लीपिंग, स्टडिंग एंड प्लेइंग। तो पूरा बताइए, स्लीपिंग के लिए अरुण कितना टाइम लिया, स्टडिंग के लिए उन्होंने कितना टाइम लिया और प्लेइंग के लिए उन्होंने कितना टाइम लिया। सो अरुण हैज टेकन 8 hours फॉर स्लीपिंग, 6 hours फॉर स्टडिंग एंड 3 hours फॉर प्लेइंग। हमने पहले की स्लाइड में देखा, ये सब समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज फॉर अदर एक्टिविटीज। अदर एक्टिविटीज के लिए कितना भाग दिन का लेता है। तो ही यूज 7/24 पार्ट ऑफ द डे फॉर अदर एक्टिविटीज। पहले मैंने आपसे काउंट करवाया, अदर एक्टिविटीज के लिए कितने बॉक्स बाकी थे, कितने बिना कलर वाले बॉक्स थे, 7 बॉक्स थे। टोटल कितने बॉक्स थे, 24। 24 में से 7 बॉक्स मतलब 7 आवर्स वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अदर एक्टिविटीज के लिए। क्लियर विद दिस एवरीवन? Fine. Now next is school magazine topic. Read the question. A school has decided to bring out a magazine every quarter of the year. How many magazines will they have in a year? If they want to print it at the end of each quarter of a year, which are the months for printing? Mark the numbers for those months. So let's do this. From the question, it is given that school has decided to bring out a magazine every quarter of the year. Every quarter. Okay. So we know that there are 12 months in a year. Fine. This is known to you. Quarter of the year means 1/4 of 12. That is 1/4 into 12. That is 4 3s are 12. Clear? So 1 into 3 is 3 months. समझ में आया? 4 3s are 12 है, ठीक है? तो 12 डिवाइड बाय 4 is 3. So आंसर आया 3 months. So every 3 months school has to bring out a new magazine. हर 3 महीने में स्कूल को मैगजीन लाना चाहिए, ठीक है? तो वो कौन से 3 महीने होंगे? पहले का तीसरा महीना कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो तीसरा महीना मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो तीसरा महीना वापस से कौन सा आया? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो तीसरा महीना वापस से कौन सा आया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर वापस से तीसरा महीना आया। तो कौन से महीने आया? मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। क्लियर विद दिस? Sleeping Beauty. Have you heard of Kumkaran, the brother of Ravana? He is famous for sleeping for half a year. Most people sleep about 8 hours a day. Then what part of a day is it? So, most people sleep about 8 hours a day. मतलब एक दिन में एक इंसान 8 घंटे सोता है। तो वो कितना पार्ट हुआ दिन का? कैसे फाइंड आउट करोगे आप? We know that 24 hours in a day, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। Given most people sleep about 8 hours in a day, तो एक दिन में 8 घंटे सोना मतलब 8 डिवाइड बाय 24। तो 8 3s are 24 हुआ। तो डिवाइड करोगे तो आपको कितना आएगा आंसर? 1/3। डिवाइड कर लेना, 8 डिवाइड बाय 24 करके देखोगे तो क्या आएगा? 8 3s are 24। तो न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 3।
So it is 1/3 part of a day. तो आंसर क्या आया? यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 1/3 part of a day इधर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट रीड करो। So what part of a year do they sleep? A person 60 years old must have slept dash years. ठीक है, तो करते हैं। A person 60 years old must have slept 1/3 into 60. अब ये 1/3 कहां से आया? ऊपर वाले सम में हमने कैलकुलेट किया था कि एक दिन में एक इंसान कितना पार्ट ऑफ द डे ही इज स्लीपिंग, सो इट वाज 1/3 ऑफ अ डे। तो अगर हम ये 60 इयर्स ओल्ड इंसान का हम कैलकुलेट करेंगे तो एक दिन में 1/3 पार्ट, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई करो 60 इयर्स, उसकी उम्र कितनी है? 60 इयर्स, ठीक है। तो उससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 20s आर 60, तो कैंसिल होके कितना आएगा? 20, यानी कि 20 इयर्स उसने इस्तेमाल किया है सोने में। समझ में आया? कीर्ति's शॉपिंग लिस्ट। लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट। ये प्राइस लिस्ट दिख रहा है आपको? हाउ मच डज 2 kilograms ऑफ टोमेटो कॉस्ट? तो टोमेटो का कितना प्राइस दिया है? 1 kg का। पर केजी मतलब 1 किलो टोमेटो का प्राइस कितना है? 12 रुपीज, ठीक है। तो 2 kg यानी कि 2 किलो टमाटर का कितना पड़ेगा? करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 किलो ऑफ टोमेटो इज इक्वल्स टू 12 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 2 kilograms ऑफ टोमेटो, तो क्या करना है? अगर 1 किलो का 12 रुपीज है तो 2 किलो का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 2s आर 24 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो। हाउ मच डज हाफ kg 1/2 kg मतलब हाफ kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट? तो अगर यहाँ पे 1 किलो का कीमत 12 रुपए है, 12 रुपीज है, तो आधा किलो टमाटर का कीमत कितना हुआ? तो आपको कैसे लिखना है? कॉस्ट ऑफ 1 किलो ऑफ टोमेटो इज इक्वल्स टू 12 रुपीज। Therefore, cost of half kilo of tomato is equals to, क्या करोगे? 12 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो कितना आएगा? 2 6 12 है, डिवाइड करोगे आप, 12 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आया? 6 रुपीज। तो आधे किलो टमाटो का प्राइस कितना है? 6 रुपीज। क्लियर? दिस यू हैव टू write it in your school notebook. Next, Kiran wants 2.5 kg of tomato. How much will it cost? अब किरण को कैलकुलेट करना है 2.5 किलो का प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पे प्राइस लिस्ट में देख सकते हो वापस से 1 किलो टोमेटो इज 12 रुपीज। तो फिर कॉस्ट ऑफ 1 किलो टोमेटो इज इक्वल्स टू 12 रुपीज। Therefore, cost of 2.5 kilo of tomato is equals to 12 multiplied by 2.5. 2.5 is a mixed fraction. You have to do it in improper fraction. तो कैसे करोगे? 2 2s are 4 plus 1 5 by 2. Again repeat करती हूँ, 2 2s are 4 plus 1 4 plus 1 5 5 by 2. तो 12 5 कितना हुआ? 60। 60 डिवाइड बाय 2 30। और एल्स आप डिवाइड डायरेक्ट भी कर सकते हो। 12 2 6 12 है ना? 2 6 12, फिर 6 को 5 के साथ यहाँ पे किया है 6 into 5 30 रुपीज।
आई होप यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. अगेन इसको आपको स्कूल के नोटबुक में लिखना है. नेक्स्ट पढ़िए. हाउ मच डज 3.5 किलो पोटैटो कॉस्ट. अब पोटैटो की कीमत कितनी है? 1 किलो पोटैटो 10 रुपीज. ठीक है, सो ऐसा लिखना है. कॉस्ट ऑफ 1 किलो ऑफ पोटैटो इज 10 रुपीज. Therefore, 3.5 kilo of potato is equals to 3.5 multiplied by 10. Again mixed fraction दिया है, improper में करना है. कैसे करोगे? 3 multiplied by 2 6. 3 2s are 6. 6 plus 1 7. तो दिख रहा है आपको improper fraction 7 by 2 multiplied by 10. तो करोगे कितना आएगा? 35 रुपीज. The cost of 3.5 kilograms of potato is 35 rupees. This you have to write it in your school notebook. What is the price of 1/4 kilograms of carrot? So you can see 1 kilo carrot, the price is given to you as 18 rupees. So you can write cost of 1 kilograms of carrot is equals to 18 rupees. But you have to find the 1/4 kilograms. So for 1 we calculated. Now you can calculate for 1/4 kilograms of carrot. So cost of 1/4 kilograms of carrot. Now this is a new method. Either you can do with the above method जो पहले की स्लाइड्स में बताया था, उस मेथड से भी आप कर सकते हो. ये नया मेथड है, एक बार देखो, समझने की कोशिश करो. ठीक है, तो पहले हमने 1 किलो कैरेट का निकाल दिया. अभी हमें 1/4 किलो ऑफ कैरेट निकालना है. तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 18. तो आप इसको कर सकते हो. बोथ आर द मल्टीपल्स ऑफ 2. सो कैंसिलेशन करोगे तो कैसे करोगे? 2 2s are 4 होता है. तो आप इसको कट करके यहाँ पे 2 लिख सकते हो और यहाँ पे 2 9s are 18 होता है. तो आप इसको यहाँ पे 9 लिख सकते हो. 2 कट हो जाता है. तो अभी आपका आंसर क्या आएगा? 9/2. 9/2 अगर आप डिवाइड करोगे, ऐसे डिवाइड करना आप जानते हो. ठीक है, आप अंदर 9 लिखोगे और यहाँ पे 2 लिखोगे ऐसे. ठीक है, तो 2 4s are 8 आता है और 9 में से 8 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा? 1 आएगा. माइनस करोगे आप, ठीक है, 1 और उसके बाद 1 आया है रिमाइंडर. तो आप यहाँ पे 0 लगाओगे. सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 9 के बाद बाजू में पॉइंट लगा के 0. ये 0 नीचे आएगा. फिर 2 के टेबल में 10 कितनी बार जाता है? 5 टाइम्स ना. तो यहाँ पे आप 5 लिखोगे और 2 5s are 10. तो 10 में से 10 निकाल दोगे, माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आंसर? 0. तो आपका रिमाइंडर बन गया 0. ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आया आपका? 4.5. क्लियर हुआ डिवीजन कैसे करते हैं? एक बार खुद से ट्राई करिए. अभी आपको क्या करना है? आपको फाइंड आउट तो 1/4 किलोग्राम्स का करना है. तो 1 किलो का आपने फाइंड किया 18 रुपीज. तो 1 किलो 18 रुपीज को लिख दीजिए. फिर 1/4 किलोग्राम्स, तो 1/4 किलोग्राम्स का आपने फाइंड आउट किया 4.5. तो 4.5 को दोनों को जोड़ दीजिए. तो टोटल आपका बन जाएगा 22.5.
तो कॉस्ट ऑफ 1/4 kilograms ऑफ कैरेट का आंसर आपका 22.5 रुपीस। रुपीस लिखना भूलना नहीं। समझ में आया? Now next, he bought a gourd of weight 3/4 kilograms and it cost dash। तो ये F वाला जो क्वेश्चन है वो होमवर्क है, आपको करना है होम क्लास नोटबुक में, और ये आगे के जो भी सम्स करा है वो भी आपको करने हैं स्कूल नोटबुक में। होमवर्क भी जरूर करिए। अगर नहीं आता है, कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर से पूछिए। Look at the shopping list in Kirti's hand. How much will she have to pay to buy all of these? So you can see a list over here. According to the price given over here of per kg, you have to calculate the total price. ठीक है? तो first you have to make 3 columns: item, price per kg and total price. ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट, पोटैटो कितना किलो खरीदना है? 1/4 kilograms and the price per kilogram. यहाँ पे आप देख सकते हो पोटैटो 1 किलो पोटैटो 10 रुपीस में बिक रहा है। तो परचेज हमें कितना करना है? कीर्ति को परचेज करना है 1/4 kilograms। तो आप कैसे करोगे? 1/4 multiply by 10 is equals to 22.50 rupees। कैसे किया? 1/4 लिखना है multiply by 10। तो you can see this is a mixed fraction। ये जो दिया है वो mixed fraction है, इसे आपको कन्वर्ट करना है improper fraction। तो कैसे करोगे? 4 2s are 8, 8 plus 1 9। तो क्या आया? 9/4 multiplied by 10। लिखा है ना multiplied by 10। अब इसको हम कट कर सकते हैं। 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो कट करने के बाद 9 5s are क्या बन गया? 45 डिवाइड बाय 2। 45 डिवाइड बाय 2 डिवाइड करो तो क्या आएगा आंसर? 22.5। तो टोटल प्राइस पोटैटो का कितना हुआ? 22.50। नेक्स्ट क्या खरीदना है? कैरेट 3/4 kilograms। ये लिस्ट देख सकते हो, कितना परचेज करना है? 3/4 kilograms। तो कैरेट 1 किलो कैरेट कितने में बिक रहा है? 18 रुपीज। देख सकते हो यहाँ पे 18 रुपीज 1 किलो गाजर के लिए। तो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे? 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 18। तो आप मल्टीप्लाई करो रफ बुक में, कितना आया आंसर? 67.50। मल्टीप्लीकेशन जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया सेम आपको करना है। क्या करोगे? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 18। तो इसको आपको इम्प्रॉपर में आप करोगे। कैसे करोगे? 4 3s are 12, 12 plus 3 15, 15/4 डिवाइड बाय 18, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 18। अगेन मैं वापस से बता रही हूँ, 4 3s are 12, 12 plus 3 15, 15/4 मल्टीप्लाइड बाय 18। आंसर आएगा 67.50। तो टोटल प्राइस कैरेट का कितना हुआ? 67.50। नेक्स्ट उसको परचेज क्या करना है? गोल्ड। वो कितना है? 1.5 kg। तो गोल्ड का प्राइस देखो 1 kg कितने में है? 8 रुपीज। तो 1.5 kg कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8। आंसर आएगा 12 रुपीज। ठीक है। अब सब कुछ करने के बाद टोटल प्राइस आपको ऐड करना है। तो ऐड करिए। पोटैटो का टोटल प्राइस था 22.5, कैरेट का था 67.5,
और गोल्ड का था 12 रुपीज। तो टोटल आप प्लस करोगे ये तीनों नंबर्स को तो आएगा 102 रुपीज आपका टोटल बिल बनेगा। क्लियर? सो कीर्ति को पे कितना करना पड़ेगा अभी? 102। समझ में आया? फाइन। नाउ मेक अ बिल of your own for vegetables you want to buy. Find the total money you will have to pay. अभी आपको जितनी आपकी मर्जी है उस हिसाब से आपको वेजिटेबल्स परचेज करना है और पता करना है कि कितना आपको पे करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सभी आइटम्स लिखे जो मुझे परचेज करना है। ऑनियन, टोमेटो, पोटैटो, कैरेट एंड गोड। अभी प्राइस इन रुपीस पर केजी की प्राइस मैंने रेड कलर में यहाँ पे लिखा है, यानी कि 1 kg ऑनियन इज 16 रुपीज, 1 kg टोमेटो 12 रुपीज, 1 kg पोटैटो 10 रुपीज, 1 kg कैरेट 8 रुपीज, 1 kg गोल्ड 8 रुपीज। आप पीछे वो देख सकते हो प्राइस लिस्ट में जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है। ठीक है, अभी मैंने सभी वेजिटेबल्स 2-2 किलो करके परचेज किया है। ठीक है, मैंने 2 किलोग्राम सभी वेजिटेबल्स परचेज किया है, तो मुझे उस हिसाब से अमाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अगर 1 kg ऑनियन इज 16 रुपीज, देन फॉर 2 kilograms आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है? 32। तो आप मल्टीप्लाई करके इधर अमाउंट में ऐसे लिख सकते हो 32, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 किलोग्राम्स परचेज किया तो मुझे टोटल ऑनियन के लिए कितने पैसे भरने पड़ेंगे? 32 रुपीज। टोमेटो मैंने कितने परचेज किए? 2 किलोग्राम्स वापिस से, तो 1 किलोग्राम 12 रुपीज में था, तो 2 किलोग्राम कितने में होगा? 12 2 कितना आता है? 24। तो 12 2 24, तो मुझे टोटल टोमेटो के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 24 रुपीज। नेक्स्ट पोटैटो कितना है? वो भी 2 किलो परचेज किए, तो 1 kg इट इज ₹10। तो 2 किलोग्राम्स के लिए 10 2 कितना आता है? 20। तो 20 रुपीज मैंने पे किए पोटैटो के लिए। कैरेट देखो कितना मैंने परचेज किया? 18 रुपीज में 2 किलोग्राम परचेज किया। 1 किलोग्राम 18 रुपीज का है, तो 2 किलोग्राम 18 2 कितना आया? मल्टीप्लाई करके देखो 36 रुपीज मैंने कैरेट के लिए पे किया। नेक्स्ट लास्ट गोल्ड जो है वो 1 किलोग्राम 8 रुपीज में है, मैंने परचेज किया 2 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड। सो 8 2 कितना आया? 16। ठीक है, तो टोटल गोल्ड के लिए मैं कितना पे करूंगी? 16 रुपीज। अभी क्या करना है आपको? सभी को ऐड करना है, बिल बनाना है, तो सभी को आप ऐड करोगे 32 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 36 प्लस 16। सो आपका टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना है? 128 ऐड करके आपको लिखना है। ठीक है, ये तो मेरी मर्जी से मैंने कितना परचेज किया? 2 किलोग्राम्स। आप अपने मर्जी से भी कोई भी किलोग्राम परचेज कर सकते हो, 5 किलोग्राम 4 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया है? मेक योर बिल ऑफ योर ओन, मतलब आपको कितना परचेज करना है, यू वांट टू बाय। ठीक है,
आपको कितना परचेज करना है उस हिसाब से आप बिल बनाओ, ठीक है। सो मैंने 2 किलोग्राम्स लिए सभी में, क्लियर। नाउ कम टू योर पेज नंबर 70 of your textbook. There you can see some practice sums has been given to you. So read the first question. Rahim's journey. Rahim has to travel 1/4 kilometer to reach school. What distance does he travel to go to school and come back home? So how would you calculate? Distance traveled by Rahim to reach his school is 1/4 kilometer. Clear? Now again he has to travel back home from his school. मतलब पहले वो अपने घर से स्कूल तक की किलोमीटर 1/4 किलोमीटर जाएगा, फिर वापस से स्कूल से घर उसे वही सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, दैट इज अगेन 1/4 किलोमीटर। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम होम टू स्कूल एंड फ्रॉम स्कूल टू होम, तो 2 बार आपको प्लस करना पड़ेगा। सो दैट इज 1/4 किलोमीटर प्लस 1/4 kilometer is how much? First of all, convert this into a improper fraction. So 4 ones are 4, like this. 1 into 4 is 4, plus 1 is 5/4. Clear? Similarly, do it over here. 1 4s are 4, plus ये न्यूमरेटर में जो 1 है उसे आपको प्लस करना है, तो 4 ones are 4 plus 1 कितना आया? 5/4. Now 5 plus 5 कितना आया? 10. 10/4 डिवाइड करने पे 2 2s are 4 होता है, 2 5s are 10 होता है, तो 2 2 कट हो जाएगा। देख लेते एक बार, इसको कट करना है और इसे भी कट करना है, क्योंकि 2 5s are 10 है और 2 2s are 4 है, तो 2 2 कट हो जाने के बाद 5/2 बचेगा। इसे आप डिवाइड करो 5 को 2 से, तो कितना आएगा? 2 इंटीजर 1/2, यानी कि 2.5 किलोमीटर टोटल उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया। So distance travel to go to school and come back home is 2.5 kilometer. समझ में आया? Next, what coins? Next question, read out. Lata bought a pencil and a pen for 7.5 rupees. She gave rupees 10. The shopkeeper gave back the money in half and quarter rupees. What are the coins she got? तो करते हैं। From the question it is given that, question में क्या दिया है? Lata bought a pencil and a pen for 7.5 rupees. एक पेंसिल और एक पेन की कीमत कितना हुआ? 7.5 rupees. Money given by Lata to the shopkeeper. लता ने दुकानदार को कितना पैसे दिए? 10 रुपए दिए। शॉपकीपर gave back the money. अभी शॉपकीपर को बाकी कितने पैसे देने होंगे लता को? तो आप क्या करोगे? लता ने 10 रुपए दिए थे, पेन और पेंसिल के खर्चे हुए 7.5 रुपए, दैट इज 7.5 रुपीज। तो 10 में से 7.5 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आया? 2.5। 7.5 को आप 7.5 भी लिख सकते हो डेसिमल्स में, ये था फ्रैक्शन में और ये है डेसिमल में, ठीक है। माइनस करना आपको आता है, माइनस करिए तो क्या आएगा? शॉपकीपर यानी कि दुकानदार लता को 2.5 रुपया वापस करेंगे। समझ में आया? So the shopkeeper can return
2.5 rupees in the following ways. अब कैसे प्रकार में वो दुकानदार लता को पैसे चुका सकता है? 4 तरीके हैं। पहला तरीका देखो क्या लिखा है, 1/2 rupee coin and 8 quarter rupee coins। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं, यानी कि 1/2 rupee coin and 8 quarter rupee coins, यानी कि क्वार्टर मीन्स 25 पैसे के 8 कॉइन्स दे सकते हैं। सेकेंड वे इज 2/2 rupee coins, that is 50 paise is half rupee. Clear? So 2/2 rupee coins and 6 quarter rupee coins. Third is 3/2 rupee coins and 4 quarter rupee coins. And the last way is 4/2 rupee coins and 2 quarter rupee coins. These are the ways the shopkeeper can return 2.5 rupees in these ways. Clear? Now, the third is at the railway station. One announcement was there. Your attention please. Mangalore Express coming from Mangalore and going to Tiruvananthapuram is now running late by half an hour. So you can see the train that is coming is running at a late by half an hour. So the train is late today. So the right time is a 6:45. A man is saying like this, and 3 questions has been asked. What time is the train expected to come today? Second, Nazia gets off at a station after 2.5 hours from this station. What time will she get off? Third, Shaji will take 5 hours to reach Ernakulam by this train. At what time will he reach there? So let us solve all these questions in the next page. So the first question is, what time is the train expected to come today? ठीक है, आज के तारीख में ट्रेन का एक्सपेक्टेड टाइम क्या है वो आपको पता करना है। So the right time is 6:45. 6:45 means 6:45। ठीक है, जो राइट टाइम है ट्रेन का स्टेशन में पहुंचने का वो है 6:45। 6:45 आपको मालूम है उसे हम क्या बोलते हैं, 6:45 को हम 6:45 कहते हैं। बट अभी क्या हो रहा है, ट्रेन लेट चल रही है आधे घंटे से, है ना। तो बट ट्रेन इज डिलेड बाय हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स। ठीक है, आधे घंटे से ट्रेन लेट चल रहा है। तो अभी ट्रेन कौन से टाइम पे स्टेशन पे पहुंचेगा? सो एग्जैक्ट टाइम ट्रेन विल अराइव एट 6:45। राइट टाइम 6:45 होना चाहिए था, बट क्योंकि ट्रेन लेट चल रही है आधे घंटे से, तो आधा घंटा हम ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करना है आपको मालूम है, 6:45 लिखो। राइट टाइम आपका 6:45 है, लेट चल रहा है गाड़ी, तो आप लिखोगे ऐड यानी कि प्लस 30 मिनट्स। ठीक है, तो 30 करोगे तो 5 + 0 5 आया, 4 + 3 7 आता है, और 6 + 0 6 आता है। अभी क्या टाइम आया, 6:75। बट आप जानते हो 1 आवर में 60 मिनट्स होता है ना। 75 मिनट्स नहीं होता है, मैक्सिमम 60 मिनट्स ही होता है। तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे 60 मिनट्स। तो 5 - 0 5, 7 - 6 1। ठीक है, अभी एक बच रहा है ना, तो वो आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 7 - 6 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो एक यहाँ पे जोड़ दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने के बाद ये
क्या हो जाएगा 7 o'clock 6 plus 7 6 plus 1 7 तो 7:15 ठीक है। आपने छोटे क्लास में भी ये सीखा है कैसे करना है, फिर भी मैंने एक बार बता दिया है आपको कैसे करना है। तो अभी आपका एग्जैक्ट टाइम क्या आया ट्रेन का स्टेशन पर पहुंचने का 7:15 ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाजिया गेट्स ऑफ एट अ स्टेशन आफ्टर 2.5 hours from this station. What time will she get off? नाजिया क्या कर रही है, उसे 2.5 घंटे के बाद उतर जाती है एक स्टेशन पर, इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे उतरने वाली है। तो नाजिया गेट्स ऑफ एट अ स्टेशन आफ्टर 2:30 hours ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन बाय नाजिया, सो अभी टोटल टाइम कितना लगेगा नाजिया को, कौन से टाइम पे वो दूसरे स्टेशन पे उतरेगी। तो ये वाला जो ट्रेन था उन्होंने चढ़ा था 7:15 पर, अभी वो ट्रेन में बैठेगी 2.5 घंटे यानी कि 2 hours and 30 minutes वो ट्रेन में बैठेगी। उसके बाद वो दूसरे स्टेशन में उतरने वाली है। तो आप दोनों को ऐड करोगे 2:30 प्लस 7:15, एडिशन इजी है आप कर सकते हो। तो टोटल टाइम क्या आया 9:45। अभी 9:45 पर नाजिया दूसरे स्टेशन पर उतरने वाली है। क्लियर विद दिस एवरीवन? Next, Shaji will take 5 hours to reach Ernakulam by this train. At what time he will reach there? So again, solution, Shaji will take 5 hours to reach Ernakulam. तो शाहजी ने ट्रेन चढ़े कितने बजे थे, 7:15 को चढ़े थे और ट्रेन के अंदर 5 घंटे तक बैठे थे ठीक है, 5 hours। तो आप 5 hours कैलकुलेट करो 7:15 के साथ, तो टोटल टाइम कितना हो रहा है 12:15। सो 12:15 को शाहजी एर्नाकुलम रीच करेंगे अगर उसने ये वाला ट्रेन पकड़ा तो। समझ में आया? वापस से शाहजी को टाइम कितना लग रहा है 5 hours, तो 7:15 को ट्रेन चढ़े थे तो प्लस 5 hours करने पे कितना आएगा 12:15। क्लियर? प्लस करके देखो रफ बुक में, देन यू विल गेट द आंसर। नाउ वर्कबुक सम, पेज नंबर 58 निकालो वर्कबुक का, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। The price list of vegetables is given here. Answer the question on its basic. तो प्राइस लिस्ट दिया है पोटैटोस, प्राइस पर केजी का मतलब 1 किलो का कीमत कितना है। तो 1 किलो पोटैटो का कीमत 15 रुपए, दैट इज 15 rupees. Tomatoes it is 20 rupees. Ladies finger it is 18 rupees. कैबेज 1 किलो कैबेज 12 रुपए, दैट इज 12 rupees. ऑनियन 1 किलो ऑनियन 16 rupees. आपको फाइंड क्या करना है, हाउ मच डज 2 kilograms ऑफ पोटैटो, 2 किलो आलू, पोटैटो मीन्स आलू में 2 किलो पोटैटो का प्राइस बताइए। अगर 1 किलो पोटैटो का कीमत 15 रुपए है तो 2 किलो पोटैटो का कितना, फाइंड आउट करो अपने आप से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ हाफ केजी ऑफ टमेटोज, हाफ केजी ठीक है, तो 1 kg 20 rupees है, तो हाफ केजी टोमेटोज कितना आएगा, ठीक है, कैलकुलेट करिए। थर्ड, हाउ मच डज 1.5 kilo ऑफ लेडीज फिंगर कॉस्ट, लेडीज फिंगर मीन्स भिंडी, तो 1 किलो भिंडी का 18 rupees है, सो 1.5 kilograms ऑफ लेडीज फिंगर का कितना होगा, ये आपको करना है होमवर्क में। वापस से आपको ये वर्कबुक में ही करना है, वर्कबुक के सम्स वर्कबुक में ही करिए ठीक है। कुछ डाउट होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए। फाइंड
the cost of 1.5 kg of cabbage. The cost of 1 kg of cabbage was given, that was 12 rupees. Now, cost of half kg of cabbage. So, half kg of cabbage price would be half, that is 1 by 2 multiplied by 12. So, 2 6 are 12, that is 6 rupees for half kg of cabbage. But you have to find out the cost of 1.5 kg of cabbage. So cost of 1.5 kg of cabbage is equals to, for 1 kg it is 12 rupees and half kg it is 6 rupees. So you can just add it up. 12 plus 6 is 18 rupees. Clear? So the cost of 1.5 kg cabbage is 18 rupees. Like this you have to find out. Clear? This was question number 4 what we solved. Coming to question number 5, how much does 1 by 4 kg of onion cost? So, for 1 kg of onion, the cost is rupees 16 and cost of 1 by 4 kg of onion. So, it would be 1 by 4 multiplied by 16. So, 4 4s are 16. You can just cut it and write, or else you can just divide it. So the answer would be 4 rupees for 1 by 4 kg of onion. But you have to find out for 1 by 4 kg. So how would you find out? So add up for 1 kg, it is 16 rupees. And here I have written 16 for 1 kg. And 1 by 4, it is 4 rupees. So 16 plus 4 is rupees 20. So rupees 20 for 1 by 4 kg of onion. Understood? Now question number 6 is again a homework that you have to do it in your workbook itself. Question is, how much does 2.5 kg of lady's finger cost? So I hope you can do it by yourself. Try to solve it in your workbook itself. Question number 7. Find the total cost of 3 by 4 kilograms of cabbage and 1 by 3 kilograms of potatoes. So, the cost of 1 kilograms of cabbage is given rupees 12 and you have to find out the cost of 4 kilograms of cabbage. So, for 4 kilograms of cabbage, it would be 12 multiplied by 4. 12 4s are 48. Clear? But you have to find out 4 3 by 4. So for 4 kg you found out 48 rupees and you have to find out 3 by 4 kilograms price. So cost of 3 by 4 kilograms of cabbage, it is 3 by 4 multiplied by 12. So it would be 4 3s are 12. So you can either cut it like this. 4 1s are 4 and 4 3s are 12. Just cancel it and write it over here as 3. So 3 3s are 9. Clear? So you can write the final answer as cost of 3 by 4 kilograms of cabbage. For 4 kg it is 48 rupees है ना. 4 किलो के लिए 48 हमने फाइंड आउट किया था प्राइस और 3 by 4 kilograms के लिए प्राइस हमने फाइंड आउट किया 9 rupees. So 48 plus 9 it is rupees 57. Clear? So final answer, that is cost of 3 by 4 kilograms of cabbage, it is price 57 rupees. Clear? Then you have to find out 1 by 3 kilograms of potatoes. So for that, 1 kilogram of potato, it was given rupees 15. 1 kilo potato का price rupees 15 दिया हुआ ही था. Now you have to find out 1 by 3 kilograms of potatoes. So 1 by 3 कैसे find out करोगे?
1/3 multiply by 15. So 3 5s are 15. कैंसिल करोगे या फिर डिवाइड कर दो. 15 1s are 15 है. Dividing it by 3, you get 5 rupees. So total cost. अभी total cost आपको 4 3/4 kilograms of cabbage का भी निकालना है and 1/3 kilograms of potatoes का साथ में निकालना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे? कैबेज का प्राइस कितना था? 57 और पोटैटो का प्राइस कितना था? 5 रुपीस. यू विल एड इट अप. एडिशन करोगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ 4 3/4 kg of cabbage and 1/3 kilograms of potatoes, it is 57 plus rupees 5 is rupees 62. The final answer. Clear with this? Question 8. How much total do 2 1/4 kilograms of tomatoes, 3 3/4 kilograms of onion and 1/5 kilograms of potatoes cost? तो आपको टोमेटो, ओनियंस एंड पोटैटोस तीनों का टोटल कॉस्ट निकालना है. तो करें हम. पहले तो 1 kg टोमेटो यानी कि 1 किलो टोमेटो का प्राइस कितना दिया है यहाँ पे? 20 रुपीज. और आपको फाइंड कितने का करना है? 2 1/4 kilograms. तो अगर 1 किलो टोमेटो का प्राइस 20 है तो 2 किलो टोमेटो का प्राइस कैसे फाइंड आउट करोगे? 20 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया? 40 रुपीज आप 2 किलो टोमेटो को दोगे. उसके साथ साथ आप 1/4 किलोग्राम भी खरीद रहे हो. तो 1/4 किलोग्राम ऑफ टोमेटो का प्राइस कितना होगा? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 20. तो 4 5s are 20. ठीक है, आप डिवाइड करोगे 20 को 4 से तो कितना आएगा? आंसर 5. तो दोनों को जोड़ दीजिए. अभी आपको निकालना है 2 1/4 किलोग्राम. ठीक है, तो 2 किलो का आपने फाइंड किया 40 रुपीज और 1/4 का था 5 रुपीज. तो 40 प्लस 5 कितना हुआ टोटल? 45 रुपीज पूरा आपको पे करना है टोमेटो के लिए. फिर आप खरीदते हो 3 3/4 kilograms ऑफ ओनियन. ठीक है, तो ओनियन का कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन. आप ओनियन देख सकते हो, प्राइस दिया है 1 किलो ओनियन का प्राइस 16 रुपीज है और आपको खरीदना है 3 किलो ओनियन. 3 किलो ओनियन का प्राइस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना आया? 48 रुपीज. 16 3 मल्टीप्लाई करिए 48. उसके बाद 3/4 kilograms ऑफ ओनियन. तो 3/4 को भी 16 के साथ मल्टीप्लाई करिए. तो आप या तो कैंसिल करके भी लिख सकते हैं ऐसे. 4 1s are 4 and 4 4s are 16. कट करके आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं ऐसे. और 3 4s are क्या बनता है? 12 है ना. तो 12 रुपीज 3/4 kilograms ऑफ ओनियन. अभी दोनों को जोड़िए तो कॉस्ट ऑफ 3 3/4 kilograms ऑफ ओनियन बनेगा 48. 3 किलो अनियन का हुआ था 48 और 3/4 का कितना हो रहा था? 12 रुपीज. तो 48 प्लस 12 कितना आया? 60 रुपीज. टोटल आपको ओनियन के लिए चुकाने पड़ेंगे 60 रुपीज. फिर पोटैटो आपने कितनी खरीदारी की? 1/5 kilograms ऑफ पोटैटोस. तो 1 kg पोटैटो प्राइस देखिए प्राइस लिस्ट में. 1 किलो पोटैटो 15 रुपये में था, बिक रहा था. ठीक है, तो 1/5 किलोग्राम ऑफ पोटैटो कितना होगा? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 15. 5 3s are 15 है ना. तो डिवाइड करोगे, अगर आप 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ₹3. तो पोटैटो को आपको चुकाने पड़ेंगे 3 रुपए. तो पूरी खरीदारी में पूरे पैसे कितने चुकाने हैं? अभी टोमेटो का भी, ओनियन का भी और पोटैटो का साथ में मिलाओगे आप. ठीक है, टोमेटो का आपका 45, ओनियन का आपका 60 रुपीज एंड पोटैटो का आपका 3 रुपीज. So 45 plus 60 plus 3
टोटल बन रहा है आपका 108, यानी कि 108 रुपीज आपको टोटल चुकाने हैं. Clear with this, everyone? Question number 14. Solve the following. Sonal has to travel 1.5 kilometer to reach school. How much total distance does she travel to go to school and coming back to home from school? So the distance traveled by Sonal to reach her school was 1.5 kilometer. Distance traveled to come back home from her school is also 1.5 kilometer. So the total distance traveled from home to school and from school to home is 1.5 kilometer plus 1.5 kilometer. Now this is given in a mixed fraction. Convert this into an improper fraction. So how would you convert? Again, 2 multiplied by 1 plus 1. So 2 ones are 2 plus 1. So 2 plus 1 is 3 by 2. Similarly, same. Again, 1 multiply by 2 or you can say 2 multiply by 1 plus 1. यहाँ पे लिखा है 1 multiply by 2. आप देखो इंटीजर और डिनोमिनेटर को आपको मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर के साथ प्लस करना है. तो 2 ones are 2 plus 1 is 3. So 3 by 2 plus 3 by 2 is 6 by 2. 3 plus 3 कितना हुआ? 6 हुआ और डिनोमिनेटर का 2 ही रहेगा. ठीक है, और 2 के टेबल में 6 कितनी बार जाता है? 3 बार. तो 3 किलोमीटर. तो टोटल कितना आया? 3 किलोमीटर सोनल ट्रैवल करती है. तो लास्ट में therefore distance travel to go to school and come back home is 3 kilometer. Clear with this? Second, Bhavna bought a pencil and an eraser for rupees 8.5. She gave rupees 10 to the shopkeeper. The shopkeeper gave back the coins of 50 paise. How many coins did she receive? So let us find out. Money given to the shopkeeper by Bhavna is rupees 10. And the cost of a pencil and the eraser what she bought was rupees 8.5 rupees. Now the money that she would receive back is rupees 10 minus rupees 8.5 is rupees 1.5. So if you multiply it by 100 because 1 rupee is equals to 100 paise. So you have to calculate in paise because the shopkeeper gave back the coins of 50 paise. So you have to find out how many coins did she receive. दुकानदार ने उसे 50 पैसे के कॉइन्स, बाकी पैसे उसको 50 पैसे के कॉइन्स में दिए थे. तो आपको गिनने हैं कितने सिक्के उसके पास होंगे, वो भी किसके? 50 पैसे के. कितने सिक्के उसके पास होंगे? भावना के पास. इसीलिए आपको 1.5 रुपीस को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आएगा 150 पैसे. ठीक है, 150 पैसे उसे वापस मिलने चाहिए. तो शॉपकीपर कितने सिक्के 50 के देंगे? 50 पैसे के सिक्के कितने वापस करेंगे भावना को? तो इसके लिए अगर आपको कॉइन्स फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ कॉइन्स रिसीव, पैसे कितने उसको मिलने चाहिए? 150. 150 रुपीस डिवाइड बाय 50, क्योंकि हम 50 पैसे की कॉइन्स वापस कर रहे हैं उसको. दुकानदार भावना को 50 पैसे की कॉइन वापस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम 150 को डिवाइड बाय 50 करेंगे. तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? 50 3s are 150. ठीक है, आप डिवाइड करो, आपको आंसर 3 मिलेगा. तो भावना के पास 3 सिक्के होंगे 50 पैसे के. ठीक है, तो भावना रिसीव 3 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे. समझ में आया? Question number 3. There was an announcement at Ahmedabad railway station that Okha Ernakulam Express is now running late by half an hour.
If the right time is 12:45, what time is the train expected to come at Ahmedabad? So the right time of the train is given as 12:45 and the train is running late by half an hour, that is 30 minutes. जो ट्रेन का एग्जैक्ट टाइम है वो है 12:45 पे ट्रेन को पहुंचना है, ये करेक्ट टाइम है। बट गाड़ी लेट चल रही है, कितने घंटे से? आधे घंटे से। हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे से लेट चल रही है गाड़ी, तो आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स। ठीक है, तो अभी एक्सपेक्टेड टाइम क्या है ट्रेन का स्टेशन पर पहुंचने का? So the expected time train will arrive at Ahmedabad is 12:45 plus 30 minutes. कैसे करोगे? पहले तो आपको ऐसा लिखना है hours और minutes, 12 hours और 45 minutes ये था राइट टाइम। गाड़ी लेट चल रही है मतलब टाइम अभी बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको 30 मिनट्स प्लस करने हैं, तो 5 + 0 5, 4 + 3 is 7 और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब ये 12 आएगा। अभी आंसर क्या आया? 12:75। अब 75 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होता है। ठीक है, 75 नहीं। सो आप क्या करोगे? माइनसिंग इट बाय 60। आपको डिडक्ट करना है 60 से। क्यों 60? क्योंकि 1 आवर there is 60 minutes. Clear? So if you minus 60, that is 5 minus 0 5, 7 minus 6 is 1. ठीक है, तो यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 12 बजकर खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर अभी कितने बज रहे हैं? 13 मतलब 1 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 कैरी फॉरवर्ड करना है, तो 2 + 1 कितना आया? 3। क्लियर? सो दैट इज 13.15, दैट इज 13 hours 15 minutes। और आप ऐसे भी लिख सकते हो 13 मतलब 1 हो जाता है 12 बजने के बाद, 13 hour मतलब 1 o'clock। ठीक है, तो 1:15 पर गाड़ी अहमदाबाद स्टेशन पे रुकेगी। तो लास्ट में आपको ऐसा लिखना है, द ट्रेन विल अराइव एट अहमदाबाद बाय 1 o'clock at 15 minutes. Clear? Next, the question is, Dhara will get off at Surat station after 4.5 hours from this station. At what time will she get off? So, the train will arrive at Ahmedabad is at 1:15 PM. ठीक है, पहले के क्वेश्चन में हमने पता किया था अहमदाबाद स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी 1:15 पे। अभी अहमदाबाद से सूरत का टाइम कितना आया? 4.5 घंटे में पहुंचेगा सूरत स्टेशन में। ठीक है, so time taken to reach Ahmedabad to Surat station is 4.5 hours. तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4 hours 30 minutes, तो वो बन गया 4:30 ऐसा। टोटल टाइम, अभी आपको टोटल टाइम देखना है, धारा को कितना टाइम लगा सूरत स्टेशन पर पहुंचने के लिए। तो अहमदाबाद पे उन्होंने स्टेशन पर ट्रेन पकड़ा 1:15 पर और उन्होंने गाड़ी में 4.5 घंटे बिताए। ठीक है, तो आप दोनों को जोड़ोगे तो ऐड करना है आपको, दैट इज 115 plus 430 gives you 545. 5 + 0 5, 1 + 3 4 and 1 + 4 5. So total time Dhara will get off at Surat station by 5:45 PM. धारा सूरत स्टेशन पर उतरेगी 5:45 पर।
Clear with this? Next, Shilpa will take 9 hours and 30 minutes to reach Panvel. At what time will she reach there? So the train will arrive at Ahmedabad 1:15, that is 1 o'clock and 15 minutes. अहमदाबाद पर गाड़ी आई थी 1:15 पर. Now the time taken to reach Ahmedabad to Panvel station is 9 hours and 30 minutes. So Ahmedabad से पनवेल स्टेशन तक कितने घंटे हुए थे? 9 घंटे और 30 मिनट, यानी कि 9:30. तो टोटल टाइम शिल्पा को कितना लगा अहमदाबाद से पनवेल तक? तो जोड़ना है आपको 1:15 प्लस 9:30. तो आप जोड़ोगे, दैट इज ऐड करोगे. 5 + 0 5, 1 + 3 4 और 1 + 9 10, यानी कि 10:45 पर. तो शिल्पा विल रीच पनवेल एट 10:45 PM. पनवेल स्टेशन पर शिल्पा उतरेगी 10:45 पर. Clear with this sum? So students, I hope now you are knowing whatever I have explained you. You have to complete all the homework and all the sums that I have made you do in this session. You have to complete it in your school notebook, and whatever the sums are there in the workbook, if there is no space for you to complete it in your workbook, you can just complete it in your school notebook itself. वर्कबुक के सम्स जो भी है, अगर उधर स्पेस कम पड़ रहा है तो वही सम्स आप स्कूल के नोटबुक में भी आप कर सकते हो, बट करना जरूरी है. होमवर्क भी करिए. अगर किसी को भी डाउट होता है, सो यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप. क्लियर? सो टिल देन, stay safe and thank you for today's session.